مسلمانوں کی رہبری کرنے والے, مسلمانوں کے جو انجن تھے وہ علماء تھے. تو علماء کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ 3 لاکھ علماء کو اس نے ذبح کیا ہے, چن چن کر مختلف جگہ پر. یہاں تک کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ بعض علماء کو برے جانور کو کاٹ کر اس کا چمڑا نکال کر اس کے چمڑے میں رکھ کر سی کر آگ میں ڈال کر جلایا گیا. معمولی چیز ہے, آج کسی عالم کو تم آسانی کے ساتھ اس کے خلاف زبان کھول دیتے ہو, آسانی کے خلاف کسی علماء کے خلاف آ کر کے زبان کھولنا آج کے زمانے میں بالکل آسان ہے. لیکن یہی علماء ہیں امت کی حفاظت کرنے والے, یہی علماء ہیں دین کی حفاظت کرنے والے, یہی علماء ہیں ملک اور ملت کی حفاظت کرنے والے. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو نہ ملک بچتا تھا, نہ ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں کا حکومت ختم ہوتی تھی. اللہ نے علماء کے ذریعے سے کام کیا. تو بعض علماء کو ایسے برے جانوروں کے چمڑوں میں سی کر آگ میں ڈال کر جلایا گیا. بعض علماء کو ایسے صندوق بنائے گئے جس صندوق میں ہر طرف سے میخ ڈال دیے گئے اور اس کے اندر رکھا جاتا تھا اور لا کر دیا جاتا تھا. وہ نہ سو سکتے تھے, نہ بیٹھ سکتے تھے, نہ ہل سکتے تھے. تھوڑے سے ہلیں گے, ادھر بھی ہلیں گے تو ادھر بھی میخ ہوگی, ادھر بھی ہلیں گے ادھر بھی میخ ہوگی. ایسے تڑپ تڑپ کر اسی صندوق کے اندر وہ انتقال ہو گئے, شہید ہو گئے. بعض علماء کو ایسے کیا جاتا تھا کہ کسی ٹرین کے ڈبوں میں ڈال کر, جو ٹرین کے تجارت کے سامان لے کر جانے والی ٹرین جسے گوڈس کہتے ہیں, ایسے ڈبوں میں ڈال کر یعنی کتنے کے دن تک بغیر کھانے کے بغیر پانی کے ان میں آ کر ہاتھ پیر کو بیڑیاں ڈال کر یعنی اس ٹرین کے اندر ڈالا جاتا تھا. وہ ٹرین کبھی کسی جگہ کھڑے ہو جاتی, مہینے کھڑے ہو جاتی. اسی طرح علماء تڑپ تڑپ کر ان ٹرینوں کے اندر اپنی جان دے دی, لیکن کبھی بھی انگریز کے سپورٹ میں نہیں آئے, انگریز کے ہاں میں ہاں نہیں ملائے. اس جمعے میں آپ کے سامنے 26 جنوری جو آج سے 3 دن کے بعد پوری ہندوستان کے اندر یہ 26 جنوری منائی جائے گی, تو 26 جنوری کے تعلق سے مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ لوگوں کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ ہندوستان کے جتنے بھی آزادی کے تعلق سے فیسٹیولز ہیں وہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہیں, ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں. حالانکہ بات غلط ہے. تو ہندوستان اور اس ملک سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے, سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والے مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں ہے. اسی لیے 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو, 15 اگست کو بطور آزادی یوم آزادی منانے کا حق بھی سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہے, اور 26 جنوری یوم جمہوریہ اس کو منانے کا بھی سب سے زیادہ حق مسلمانوں کا ہے. تو میرے بھائیوں, مسلمان ایک ایسی قوم ہے, اگر مسلمانوں کا ضمیر جاگ جائے تو پھر اس قوم کو سنبھالنے والا, اس قوم کو دبانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اگر مسلمانوں کا ضمیر مر جائے تو پھر ملک کے ملک تباہ برباد ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آج سے 75 یا 77 سال پہلے, 70 پر 7 سال پہلے ملک آزاد ہوا. 1940 پر 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا. اس سے پہلے غلاموں کی زنجیروں میں بٹا ہوا تھا. سب لوگ غلام بن کر انگریزوں کے ماتحت میں جی رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک پر بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ تقریباً 1799 جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے اپنی چال اور مکاری کے ذریعے سے ان کو شہید کر دیا, اس کے بعد پوری ہندوستان کے اندر ان کی حکومت ایسے خطرناک طریقے سے قائم ہو گئی جو ظلم کی بنیاد پر ان کی حکومت رکھی گئی. اور جو حکومتیں ظلم کی بنیاد پر حکومت چلاتے ہیں ان کا زیادہ ملک کے اندر قائم رہنا نہیں ہوتا ہے, وہ ایک نہ ایک دن ایسی حکومتیں اکھڑ جاتی ہیں. انگریزوں نے بھی جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا تو اسی وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب سارا ہندوستان ہمارا ہے. اس سے پہلے نہیں بولتے تھے یہ لوگ. تو پھر ایسا ظلم کرنا شروع کیا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر ہو, کوئی بھی ہندوستانی آدمی ان کے سامنے گزرتا تو اس کو ہر طرح سے ان کے مال کو لوٹا گیا, ان کے جانوں کو ختم کر دیا گیا, اور ہندوستان کے عورتوں کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کیا, ان کی عزتوں کو لوٹا گیا, اور طرح طرح کے ظلم و زیادتی کے بازار انہوں نے گرم کیے ہوئے تھے. اسی لیے کہتے ہیں اس وقت پورے ملک والے ان کے غلاموں کی زنجیروں میں غلام کی زنجیر پہن کر بیٹھے ہوئے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی انگریز کے خلاف آواز اٹھانے کی یا قلم اٹھانے کی. تو آواز میں ایسی چیز ہے, جب کسی ظالم کے خلاف زبان اٹھائی جاتی ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. اور یہ قلم بھی ایسی چیز ہے, اس کے خلاف اگر کوئی لکھتا ہے تو سمجھو کہ اس سے بھی بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے. تو چنانچہ سب سے پہلے جب یہ ظلم و زیادتی کی داستان لمبی ہوتی گئی تو سب سے پہلے حضرت شاہ
ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں اپنے مدرسے میں بیٹھ کر انہوں نے آ کر کیا ایک فتویٰ جاری کیا اور کہا کہ اس وقت ہندوستان پر قابض ہو چکا ہے انگریز، اور اس کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اب یہ فتویٰ ساری ہندوستان کے اندر گیا، مسلمانوں کا ضمیر جاگا، مسلمان اٹھے، میدان میں تشریف لائے، اور طرح طرح کی تحریکیں وہاں سے شروع ہوئی، طرح طرح کے انگریز کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع کی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی انگریز یہ نہیں چاہتا، کوئی تختہ پسند آدمی، یہ برٹش والے، یہ یہودی، یہ جتنے بھی اگر گورے لوگ ہیں نا، یہ تختہ پسند لوگ ہیں، ان کو تختے سے اتنی زیادہ محبت ہے اور ملک کے عہدے سے اتنی زیادہ محبت ہے، عہدے کے لیے وہ کچھ بھی کرنا چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کی جان لینا چاہے جان بھی لے سکتے ہیں، کسی کو کچھ بھی کرنا چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے یہ خطرناک یہودی، نصارہ اور برٹش کے جتنے بھی لوگ تھے وہ تختہ پسند لوگ تھے۔ جب یہ جگہ جگہ وہاں پر تحریک آزادی کی آوازیں اٹھنے لگی تو اب ان کو تشویش ہوئی کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو بہت سارے انہوں نے بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا اور کہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت اگر کیا ہے، ملک کے بڑے بڑے علماء، حضرت مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ، دو بڑی جنگیں ملک کے ہندوستان کے اندر ہوئی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح بنگال کا سراج الدولہ جو جنگ کیا، اس کے علاوہ آ کر کیا ہے، ہندوستان کے اندر عام لوگ انگریزوں سے جو جنگ کیے ہیں وہ سب سے پہلے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ شاملی کے میدان میں، اور اسی طرح مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پر آ کر یہ دونوں حضرات اپنی فوج کو لے کر، اور فوج میں کوئی اور نہیں، عام مسلمان تو نہیں، تقریباً سارے علماء تھے۔ تو 1850 کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی انگریز کے خلاف۔ تو اس جنگ کے اندر، جسے بالی ووڈ لوگوں نے آ کر فلم بھی بنایا غدر کے نام سے، غدر نہیں ہے، انگریز کا دیا ہوا نام ہے یہ غدر، جنگ غدر۔ غدر کا اصل معنی ہے دھوکہ، لیکن ملک کے اندر جو انگریز کے خلاف جنگ کی ہے وہ دھوکے کی جنگ نہیں تھی، وہ اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے جنگ تھی۔ تو اس وقت اگر کہ انگریز کے زبان سے یہ مقولہ نکلا کہ یہ غدر ہے، اسی کی بنسبت ان ہندوستانیوں کو پتا بھی نہیں، ان ایکٹروں کو پتا بھی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے ہندوستانیوں نے ملک کی آزادی کے لیے جو علماء نے آ کر قربانی اس جنگ کے اندر دی ہے، اور وہ جنگ ہارے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ جیتے ہیں، بلکہ وہ جنگ ہارے ہیں، اور اس جنگ کا نام انگریز نے غدر دیا تھا، اسی کو فلم بنا کر دکھائے۔ کتنے بدتمیز لوگ رہنا کہ بھئی اپنے ملک کے لیے جان دینے والے، اپنے ملک کی زمین کو حاصل کرنے والے وہ علماء جو انگریزوں کے خلاف جنگ کیے ہیں اس کے خلاف آ کر فلم بنائے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہسٹری معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی جنگ ہوئی انگریز کے خلاف، حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں کی آ کر قیادت میں بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو ہار ملی۔ تقریباً 2 لاکھ افراد اس کے اندر شہید ہوئے، اس میں 51,000 50 پر 1,000 علماء ہیں، شہید ہونے والے علماء ہیں۔ تو ہر زمانے کے اندر چاہے باطل کہیں بھی منہ اٹھاتا ہو، کہیں بھی سر اٹھاتا ہو، سب سے پہلے اس باطل کو بھانپنے والے، اس باطل کا سراغ لگانے والے وہ علماء کرام ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جو تعریف فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ تو اس ہندوستان کی آزادی میں اگر علماء نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ جس علماء کو، جس مولویوں کو لوگ حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کرتے، اپنی جانوں کی قربانیاں نہ پیش کرتے، یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہوتا، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب سے پہلی جنگ 1850 میں ہوئی، جس میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اس میں خالص 50 اور 1,000 مسلمان یعنی علماء شہید ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا، یعنی جنگ آزادی کی تحریکیں وہاں سے شروع ہوئی، جوش و خروش کے ساتھ مسلمان یعنی اس جنگ کی تحریک میں حصہ لینے لگے۔ بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے لوگوں کو انگریز نے پکڑ کر کہیں کالا پانی میں جا کر قید کر دیا، کہیں آ کر کیا سولیوں پر چڑھا دیا، پتہ نہیں کیسے کیسے اس نے آ کر کیا ہے تکلیف دیا۔ اس کے باوجود بھی یہ آزادی کی تحریک خاموش نہیں ہوئی اور پوری ہندوستان کے اندر ایسے پھیل گئی، چاہے جتنے لوگ آ کر کیا قید کر دیا جائے تو تب یہ تحریک تھمنے والی نہیں تھی۔ اس کے بعد انگریز نے کیا کیا کہ بھئی کیا کیا جائے، وہ یعنی گھر کو آگ لگی،
घर के चराग से, तो उस वक्त भी आकर मुल्क के गद्दार मौजूद थे जो अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाते थे, अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। जो मुल्क के हिंदुस्तान का गद्दार अंग्रेजों को ये जंगों की तहरीकों की खुफिया जानकारी दे देता है, अंग्रेज उसको छोड़ देता है, उसको अमान देता है, उसके साथ इनाम का मामला करता था। ऐसे अगर गद्दार मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद थे उस जमाने के अंदर। तो एक गैर आदमी, नाम तो नहीं लेता मैं, उस आदमी को बुलाया गया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अब जैसे हम लोग रैलियां वगैरह निकालते हैं उसके अंदर यानी आवाज उठाते हैं, ये तो उस जमाने का सिलसिला रहा जिसमें हुकूमत को ललकारा जाता था, भाई हिंदुस्तान छोड़ दो, हिंदुस्तान के तख्त को छोड़ दो, ये मुल्क हमारा है, ये जमीन हमारी है। इस तरह के नारे लगाकर यानी हुकूमतों को ललकारा जाता था, जिसकी वजह से हुकूमतों को बड़ी तकलीफ होती थी। एक गोरा आदमी कहीं से आकर यहां पर हुकूमत कर रहा था तो कौन इसको कबूल कर सकता था? तो इस तरह की तहरीकों की आवाज शुरू हुई। सबसे ज्यादा इस तहरीक में हिस्सा लेने वाले मुसलमान थे। तो एक आदमी से, मुल्क के एक आदमी से उसने मशवरा किया कि ये तहरीकों की आवाज को दबाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस मुल्क का गद्दार ने उस अंग्रेज को मशवरा दिया कि देखो, मुल्क का सबसे ज्यादा दर्द, मुल्क के बारे में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुसलमानों को है। जब तक उनके यानी अंदर जज्बा जिहाद रहेगा, जिहाद का जज्बा रहेगा, तुम मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते और तुम मजबूर होकर मुल्क को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसी जिहाद को बदनाम किया गया ना। अगर यह जिहाद मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ ना किया होता तो कभी मुल्क आजाद नहीं होता। तो जिहाद कहते हैं जुल्म के खिलाफ चाहे जबान उठाना, जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना, जुल्म के खिलाफ हथियार उठाना। जब जालिमों का खात्मा हो जाए समझ लेना कि यानी उसी को जिहाद कहते हैं। जब कहीं भी अगर जुल्म होता है, कहीं भी अगर क्या है जुल्म के जरिए से लोगों को तरह तरह के जुल्म पेश किए जाते हैं, तो उस वक्त आकर क्या है, इस्लाम के अंदर एक मुअज़्ज़ज़ लफ्ज है जिहाद। कि जिहाद का माना यह है कि जालिमों के खिलाफ या तो जबान के जरिए या कलम के जरिए या हथियार के जरिए उनसे आकर लड़ना, जद्दोजहद करना, यह असल चीज है। तो एक तो मुसलमान है, जब तक ये मुसलमान रहेंगे, और मुसलमानों में भी सबसे ज्यादा उनकी दौड़ भाग मुसलमान किसके हाथ में होते हैं? उनके उलमा के हाथ में होते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, उस जमाने के लोग सारे के सारे लोग उलमा के हाथ में थे। जैसे एक आवाज उठती, उलमा के पीछे लब्बैक कहकर आ जाते थे, और उलमा भी आकर क्या है, उनका साथ देकर खुद भी कुर्बान होते थे, उनके साथ बहुत सारे लोग भी कुर्बान होते थे। तो इसीलिए अपनी ईमान की हिफाजत चाहते हो, अपने दीन की हिफाजत चाहते हो, तो उलमा के हाथ में आ जाओ। उलमा की बात को सुनकर अपनी जिंदगी को ऐसे ढालना शुरू करो, कामयाबी मिलेगी। तो उसने ये कहा, गद्दार ने कहा कि एक तो मुसलमान, और मुसलमानों में भी सबसे ज्यादा उलमा है, वो उलमा जब तक रहेंगे तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दूसरा, उनके अंदर कुरान एक ऐसी किताब है जिस पर वो मरने के लिए तैयार, मिटने के लिए तैयार। जब ये उलमा और कुरान और हदीस जब तक रहेंगी, जब तक तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उस वक्त उसने दोनों को खत्म करने के लिए आम मुसलमानों को तो छोड़ दिया, मुसलमानों की रहबरी करने वाले, मुसलमानों के जो इंजन थे वो उलमा थे। तो उलमा को टारगेट करना शुरू किया, यहां तक कि 3 लाख उलमा को उसने ज़बह किया है, चुन चुन कर मुख्तलिफ जगह पर। यहां तक कि बाज तारीख की किताबों में लिखा गया है कि बाज उलमा को बुरे जानवर को काट कर उसका चमड़ा निकालकर उसके चमड़े में रख कर सी कर आग में डालकर जलाया गया। मामूली चीज है, आज किसी आलिम को तुम आसानी के साथ उसके खिलाफ जबान खोल देते हो, आसानी के खिलाफ किसी उलमा के खिलाफ आकर के जबान खोलना आज के जमाने में बिल्कुल आसान है। लेकिन यही उलमा है उम्मत की हिफाजत करने वाले, यही उलमा है दीन की हिफाजत करने वाले, यही उलमा है मुल्क और मिल्लत की हिफाजत करने वाले। अगर ये उलमा ना होते तो ना मुल्क बचता था, ना मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का हुकूमत खत्म होती थी। अल्लाह ने उलमा के जरिए से काम लिया। तो बाज उलमा को ऐसे बुरे जानवरों के चमड़ों में सीकर आग में डालकर जलाया गया। बाज उलमा को ऐसे संदूक बनाए गए जिस संदूक में हर तरफ से आकर मेख दाग दिए गए और उसके अंदर रखा जाता था और ला कर दिया जाता था। वो ना सो सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना हल सकते थे। थोड़े से हलेंगे, इधर भी हलेंगे तो इधर भी मेख होगी, इधर भी हलेंगे इधर भी मेख होगी। ऐसे तड़प तड़प कर उसी संदूक के अंदर वो इंतकाल हो गए, शहीद हो गए। बाज उलमा को ऐसे किया जाता था कि किसी ट्रेन के डब्बों में डालकर, जो ट्रेन के तिजारत के सामान लेकर जाने वाली ट्रेन जिसे गुड्स कहते हैं, ऐसे डब्बों में डालकर यानी कितने के दिन तक बगैर खाने के, बगैर पानी के, उनमें आकर हाथ पैर को बेड़ियां डालकर यानी उस ट्रेन के अंदर डाला जाता था। वो ट्रेन
कभी किसी जगह खड़े हो जाती, महीने महीने खड़े हो जाती। इसी तरह उलमा तड़प तड़प कर उन ट्रेनों के अंदर अपनी जान दे दी, लेकिन कभी भी अंग्रेज के सपोर्ट में नहीं आए, अंग्रेज के हाथ में हाथ नहीं मिलाए। हार्टसन एक अंग्रेज गुजरा है, वो कहता है कि मैंने देखा दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर लाहौर के पेशावर तक हर झाड़ पर मेरा गुजर हुआ और हर झाड़ के ऊपर किसी ना किसी आलिम की लाश को मैंने देखा। तो मेरे भाइयों, इस तरह की कुर्बानी जब इस जमीन को दिए हमारे उलमा, यहां तक कि वही हादसा कहता है, एक मरतबा मैं दिल्ली को आया, दिल्ली को आने के बाद मैं क्या देखता हूं कि एक मुर्दार को जलाने की बू आ रही थी। मुर्दार को जलाने की बू आ रही थी, जैसे कोई आदमी किसी मुर्दार को डाल दिया, किसी जिंदा आदमी को डाल दिया तो जलकर उससे जो बू निकलती है वो आने लगी। मैं अपने महल के पीछे जाकर देखा तो वहां पर एक मुस्तकिल मैदान था, जंगल के जैसा था, वहां पर अंग्रेज बैठा हुआ है और 40 उलमा को बुलाता है, बुलाकर उनके कपड़े निकालता है और वहां बहुत बड़ी आग जलाई हुई थी। उस आग में उसने बारी बारी एक एक मर्तबा 40 उलमा को डालकर वो जला रहा था और कह रहा था, एक मर्तबा कह दो 1850 की जो जंग हुई थी उसमें हमें शरीक नहीं थे, हम आखिर क्या उलमा का साथ नहीं दिए और इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का साथ नहीं दिए, मौलाना जाफर थानेसरी का साथ नहीं दिए, हम उस जंग में शरीक नहीं रहे, एक मर्तबा बोल दो तुमको हम छोड़ देंगे। लेकिन कोई आलिम कपड़े खोल दिया और आग में जलने के लिए, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जलने के लिए तैयार हुए, आग में डाल दिए गए, इसी तरह 40 उलमा को लाता और उनको नंगा करके आग में डाल देता, उस आग में जल जल कर खाक हो जाते, कभी कॉम्प्रोमाइज अंग्रेज के साथ नहीं हुए। तो मेरे भाइयों, बताओ आज किस स्कूल के अंदर ये कुर्बानियां जो उलमा ने दी हैं, किस स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस कॉलेज के अंदर अपने बच्चों को समझाया जाता है कि मुल्क के अंदर सिर्फ 3-4 शख्सों का सबसे ज्यादा नाम निकलता है, एक महात्मा गांधी, एक नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इसी तरह भगत सिंह, ये सब आखिरी सफ के लोग हैं। अरे शुरू सबसे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो ऐसी कुर्बानियां तारीख लिखने वाला खुद अंग्रेज हार्टसन है, वो लिखता है अपने किताब के अंदर, आप उठाकर उसकी किताब पढ़े मालूम हो जाएगा। ये तारीख लिखने वाले, ये जुल्म की दास्तान लिखने वाले मुसलमान नहीं, मुसलमान के बजाय वो अंग्रेज जो उस जमाने के अंदर अपने आंखों से उलमा को मारते हुए, किसी बाज उलमा को ऐसा किया गया कि किसी झाड़ के पास लाकर उस बांध देते थे, झाड़ से बांध देते थे और उनके ऊपर हाथियों के झुंड को छोड़ देते थे और हाथी अपने पैर से कुचल कुचल कर खीमा बना देते थे उलमा। बाज उलमा ऐसे थे जिनको अगर ऐसा एक हाथ से एक रस्सी, इस तरह 4 पांव पर रस्सी बांधकर चारों तरफ से घोड़े दौड़ाते थे, उनके जिस्म आकर चारों तरफ निकल जाते थे, इस तरह की अजियत और तकलीफ देते थे। उस वक्त जब आकर क्या है अंग्रेज जब उलमा पर टारगेट किया तो मजमूई तौर पर 3 लाख उलमा का उसने ज़बह किया है। वो उलमा ज़बह हुए हैं अपने घर की जगह को बचाने के लिए नहीं, अपनी जागीर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, जिस मुल्क में आकर वो फंसा हुआ था, जिस मुल्क में आकर वो यानी तमाम मुल्क वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था, ऐसे वक्त उलमा ने हाथ बटाया और इतनी कुर्बानियां दी, तारीख लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं, तारीख लिखने वाला अंग्रेज है। इसलिए मेरे भाइयों, हर जमाने के अंदर मुल्क की मोहब्बत, मुल्क का दर्द रखने वाले, मिल्लत का दर्द रखने वाले और कौम का दर्द रखने वाले कोई सियासतदान नहीं होते, याद रख लीजिए। सियासतदान तो अपने मफाद के लिए जीते हैं और मुल्क का दर्द रखने वाले, मिल्लत का दर्द रखने वाले, कौम का दर्द रखने वाले वो उलमा ही होते हैं। उनको पता है अल्लाह ने उनको मुक्तदा बनाया हुआ है लोगों का और उन पर जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि तुम लोगों के दीन की भी, मिल्लत की भी हिफाजत करने की जिम्मेदारी उलमा की होती है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, यह सिलसिला चलता रहा। 1850 से तहरीकें शुरू हुई, उलमा को टारगेट करके मारते रहे, यहां तक कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जमाना आया। फिर उसके बाद ऐसी मजबूत तहरीकें शुरू हुई, फिर भी उसके बाद तहरीकें नहीं छोड़े, यहां तक कि 1940 को अंग्रेज मजबूर होकर हिंदुस्तान को छोड़कर भागा। तो उस वक्त 15 अगस्त था और 1940 था, उस वक्त सारा मुल्क आजाद हुआ, ये अंग्रेज के इस जुल्म से आजाद हुआ। फिर उसके बाद ये मुल्क की दौड़ भाग इस मुल्क के लोगों के पास आई, तो उस वक्त भी फिरका परस्त ताकतें मौजूद थी जो अंग्रेजों की गुलामी में मौजूद थे।
अंग्रेजों की गुलामी करते थे फिरका परस्त ताकतें, कभी उन्होंने मुल्क के लिए कभी कोई हथियार नहीं उठाया, कभी मुल्क के लिए, मुल्क की आजादी के लिए किसी एक बेटे को कुर्बान नहीं किया। आज मुल्क की दौड़ भाग उन्हीं के हाथों में मौजूद है। तो इसीलिए कहते हैं कि 1940 के अंदर जब मुल्क आजाद हुआ तो कोई दस्तूर इस मुल्क का नहीं था, कोई कानून इस मुल्क का नहीं था। तो तकरीबन 2.5 साल लग गए इस मुल्क के कानून को बनाने के अंदर। जब कानून बनाया गया 1950 26 जनवरी को वो कानून मुकम्मल हुआ, जिसे यौम जमहूरिया कहते हैं। जमहूरी का माना क्या है? यानी हर आदमी को इस मुल्क के अंदर, हर मजहब वाले को उसके मजहब पर जीने का इख्तियार है, चाहे वो मस्जिद में आकर जी रहा हो, चाहे वो मंदिर में जी रहा हो, चाहे वो गिरजा में जी रहा हो, चाहे वो अपने मजहब के लिए कुछ भी करे, उससे मुकम्मल तौर पर आजादी है। यह दस्तूर बनाया गया और इस दस्तूर को आज के फिरका परस्त ताकतें खत्म करके दस्तूर को मिटाकर एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, अपने दिमाग से अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। याद रख लीजिए, यह मुल्क आकर क्या किसी फिरका परस्त ताकतों का नहीं है, यह मुल्क तो तमाम मजहब के रहने वालों का है। जो तमाम मजहब वाले सबसे ज्यादा इस मुल्क पर जिसका हक है वो मुसलमानों का है। उसके बाद आखिरी सब में सारे लोग इस मुल्क की तहरीक में शामिल हुए, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब के लोग थे। तो ये दस्तूर बना तमाम मजहब के लोगों के लिए कि उसको, यानी इस हिंदुस्तान में जो भी रहते हैं, अपने मजहब पर आजादी के साथ उसको जीने का हक है। इसीलिए उस जमाने के अंदर भी मस्जिद के अंदर अजान की आवाजें गूंज रही थी, मस्जिदें आजाद थी। हर आदमी अगर मस्जिदों में जाकर इबादतें करते थे, हर मजहब वाले अपने अपने इबादत खानों में जाकर यानी इबादतें करते थे। लेकिन आज फिरका परस्त ताकतों को मस्जिद के अंदर होने वाली अजान से पेट में दर्द होता है, और मुसलमानों के दाढ़ियों से पेट में दर्द हो रहा है, मुसलमानों के मजहबी त्योहारों से पेट में दर्द हो रहा है। आज जो आजादी हमारे बुजुर्गों ने लड़कर हिंदुस्तान में आजादी दिलवाई थी, उस आजादी को मुकम्मल तौर पर छीनने के लिए फिरका परस्त ताकतें आज बिल्कुल सफ़े अव्वल में मौजूद हैं और हिंदुस्तान को अपने जहन के हिसाब से अपनी तरफ माइल करके सारे हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत की फिजा को खत्म कर तमाम नफरतों के शोलों को भरकर लोगों में आपस में लड़वाने के लिए फिरका परस्त ताकतें बिल्कुल यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैला भी चुके हैं। जहां कहीं मुसलमान हो वहां किसी गैर मुस्लिम को खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो मुसलमान से नफरत करे। हालांकि ये मुल्क हमारा ऐसा नहीं था। हमारा मुल्क तो यानी आमतौर पर यह कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब, यानी पूरे मिलकर रहते थे, गैर भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, लेकिन अपने मजहब पर आजादी से जीने का उनको हक था। लेकिन इसको अगर खत्म कर दिया गया, आज मुसलमान भी परेशान है, क्रिश्चियन भी परेशान है, बुद्ध मजहब के लोग भी परेशान है, और उनके मजहब में जो दलित किस्म के लोग हैं वो भी परेशान है। तो इसलिए मेरे भाइयों, यौम जमहूरिया आज यौम जमहूरिया नहीं रहा। जो एक वक्त हम आकर बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते थे, आज आकर क्या है, जुल्म के खिलाफ जैसे आवाजें उस जमाने में उठी थी, आज भी आकर जबान खोलना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को सामने आना पड़ेगा। उस जमाने में हमारे शेखुल हिंद सामने आए, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सामने आए, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही सामने आए, हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह सामने आए, और मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह सामने आए। ये तमाम हमारे अकाबरीन हैं जो आकर उम्मत की क़ियादत की। आज उम्मत के कायद लोग अगर उम्मत को किसी फिरका परस्त ताकतों के हवाले कर दिया तो समझो कि यह मुल्क कुछ सालों के बाद हमारा नहीं रहेगा। तो बहरहाल मेरे भाई, इसीलिए मुल्क के अंदर जीने का सबसे ज्यादा हक मुसलमानों का है। इसीलिए मुसलमान सबसे ज्यादा खून इस मुल्क की जमीन पूजिए है, सबसे ज्यादा खून, उसमें सबसे ज्यादा हक उलमा का होता है। इसीलिए आज उलमा को मुसलमानों के दिलों के अंदर भी नफरत डाल दिया गया। मुसलमान भी उलमा को पसंद नहीं करते, उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। वो एक अलग कौम की तरह उलमा को देखा जाता है। हालांकि उलमा मिल्लत और कौम के लिए बहुत बड़े रहबर हैं और बहुत बड़े हमदर्द हैं। अगर उलमा का साथ ना दोगे, उलमा के साथ नहीं रहोगे, अपना ईमान भी जाएगा, दीन भी जाएगा, और अपनी तमाम दुनियावी नेमतें भी अगर क्या खत्म हो जाएंगी। इसलिए यह पैगाम है 26 जनवरी का, जो पीर के दिन वो दिन मनाया जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन यह हकीकत बात है कि हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था हिंदुस्तान का, वो ख्वाब पर पानी डाल दिया गया और वो ख्वाब को अगर खत्म कर दिया गया। हमारे बुजुर्ग चाहते थे कि इस मुल्क को आजाद होकर हर आदमी अपने मजहब पर चले, लेकिन आज वैसा होने नहीं दिया जा रहा है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको तारीख यानी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चाहे तारीख अंग्रेज ने लिखा हो, अपनी हिंदुस्तान के अंदर की जुल्म की दास्तान जो अंग्रेज ने लिखा है वो पढ़ने के बड़ा काबिल है। उसने जो जो उलमा के साथ ज्यादतियां हुई हैं उस जमाने के अंदर, वो सारा उसने अंग्रेजी जबान के अंदर कलम बंद किया है। आप उससे पढ़ो। पढ़ने वाले जितने भी लोग अगर अंग्रेजी आती है उनको उठाकर गूगल के अंदर सर्च करो, जिसमें आकर क्या है
तकरीबन उलमा को जितने तरीके से सजा दी गई है वो सारे सजाओं का तस्करा उसने अपने किताब के अंदर किया है। वक्त के मुख्तसर होने की वजह से वो सारे सजाएं मैं आपके सामने नहीं बोल सका। बहरहाल मेरे भाई चंद बातें रही। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपने मुल्क की हिफाजत, अपने मिल्लत की हिफाजत, अपने दीन और ईमान की हिफाजत में पूरी जिंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए और बरादरान वतन से अच्छे सुलूक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक अहम ऐलान यह है कि हमारे मस्जिद उमर अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे बहुत बड़ा महल्ला है। तकरीबन आज से 7 साल पहले या 8 साल पहले किसी का इंतकाल हो जाता तो फोन यहां आता, भाई इंतकाल हो गया है किसी का। तो हमारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो तजहीज व तकफीन जनाजे के तमाम अरकान को अदा करने वाला और गुस्ल देने वाला, कफन देने वाला, नहलाने वाला कोई भी नहीं था। तो उस वक्त हम बड़े परेशान थे, क्या करना चाहिए, किसी एक आदमी को मुतय्यन करना चाहिए। तो फिर एक ऐसे मुअज्जिन को मुतय्यन करे जो हमारे मोहल्ले के उन पुराने हैं, जिनका नाम है सैयद बादशाह। तो उनको आकर मुतय्यन करके सारे मोहल्ले के अंदर किसी का भी इंतकाल हो जाए तो तजहीज और तकफीन की जिम्मेदारी इन्हीं के हवाले की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों तक लोग बुलाते थे, ये करते थे। लेकिन आज का मामला कैसा हो गया कि जनाजा तो हमारी मस्जिद से लिया जाता है, लेकिन यानी नहलाने के लिए, कफनाने के लिए किसी और जगह से आकर इंतजाम किया जाता है। ये बात गलत है। भाई हम मोहल्ले के लिए रखे हैं तो मोहल्ले का हक बनता है, जैसा आप मस्जिद से जनाजा उठाते हैं तो आप मस्जिद से मुअज्जिन साहब को उठाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनाजा ले लें, मुअज्जिन साहब को छोड़ दें, उनका भी हक बनता है। वो भी आकर क्या है, उनको मैंने आकर बिठाकर बहुत सारी बातें जनाजे के नहलाने के ताल्लुक से, कफनाने के ताल्लुक से बहुत सारी बातें शरीयत तौर पर मैंने उनको समझाया भी है। तो इसलिए शरीयत के हिसाब से तुम करना चाहते हो तो हमारे मुअज्जिन साहब को ले, किसी और जगह से यहाँ जनाजा लेना, किसी और जगह से आकर क्या है इंतजाम कर लेना, यह मुनासिब नहीं है। हक तो बनता है मोहल्ले का, मोहल्ले के मुअज्जिन का हक बनता है। आप यानी मोहल्ले के अंदर किसी का भी जनाजा हो, मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, आप जनाजा पूछने के लिए आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा आपके लिए हाजिर है। हमेशा 24 घंटे कभी भी आओ आप, लेकिन लेकर जा सकते हैं। इस बात का ख्याल करें कि पूरा कफन से लेकर दफन तक पूरा इंतजाम इंशाअल्लाह वही करेंगे। तो इसलिए आप हमारे मुअज्जिन साहब का भी नंबर रख लें और कहीं ऐसा कोई इंतकाल हो जाए तो फौरन उन्हीं से राब्ता करके उन्हीं को अगर साथ लेकर अपनी सारी कार्रवाई करें। यह आपसे एक अहम दरखास्त है, आप इस दरखास्त को कबूल फरमाएं, इसलिए कि मोहल्ले में सबसे ज्यादा हक उन्हीं का बनता है। इस सिलसिले के अंदर अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।